I will not judge anybody. मैं दूसरों का न्याय नहीं करूंगा। But there's a difference between judgment and discernment. और एक भिन्नता है न्याय करना और एक व्यक्ति को समझने में। That means I sense when I listen to a certain preacher, he is not genuine. जब किसी प्रचारक को मैं सुनता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये सच्चा Or नहीं है। the way some people talk, you say this guy is a crook. I can make out that. और मैं समझ जाता हूं कि ये व्यक्ति सीधा नहीं है, So टेढ़ा I'm not है। judging him. मैं उसका न्याय नहीं कर I'm रहा, just discerning him, so I will not have any dealings with him in my life. मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आगे कुछ और काम उसके साथ लेन देन I ना will not करूं। spend my time listening to this preacher because I feel he is not genuine. और किसी प्रचारक का प्रचार सुनने के लिए मैं अपना समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगा जो मुझे लगता है कि वो सचमुच में परमेश्वर वचन में से नहीं कर that रहा is है, discerning for my own benefit. और मैं अपने लाभ के लिए समझने की कोशिश कर रहा But हूँ। judging is I pass a judgment on him. He's like this, he's like that. न्याय का मतलब है मैं बोलता हूँ कि ये व्यक्ति इस प्रकार का है या उस प्रकार का है, Discernment is more an inward thing. और जो समझना है वो है अपना अंदरूनी बात। That I discern something, so I decide whether I can have dealings with this man or not. और मैं उस व्यक्ति के बारे में जो है जानकारी हासिल करता हूँ ताकि उसके साथ आगे कुछ काम करना है कि नहीं। For example, if you are considering marriage, you must discern. You don't have to judge a person, but you must discern. Do I want to spend my life with this person or not? शादी करने से पहले हमें उस व्यक्ति को जांचना है, समझना है कि इस व्यक्ति के साथ मुझे शादी करना चाहिए कि नहीं। You're not judging the person, but you're discerning. I don't feel free about this person. आप उसका न्याय नहीं कर रहे, लेकिन आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। So remember understand the difference between discerning and judging. इसलिए याद रखें इस भिन्नता को कि न्याय करना और किसी व्यक्ति को समझना। Discerning is a more inward thing for my personal relationship with somebody. और समझना मतलब जो है वो हमारे अंदरूनी एक चीज है और वो हमारे खुद के लाभ के लिए है, That I must do all the time. और वो मुझे हमेशा करना है। We must discern every preacher we listen to. Can I continue listening to him or is it और not हर एक helpful? प्रचार का जांच पड़ताल करना चाहिए ताकि मुझे उससे सुनना चाहिए या नहीं करके। Is his attitude to money Christ-like? Is his attitude to money Christ-like? या फिर ये मसीह जीवन के लिए प्रोत्साहन करता है या फिर धन दौलत के लिए। Is he leading me to a godly life? क्या वो मुझे सहायता करेगा कि मसीह जीवन That जीने is के लिए, discernment. ईश्वरीय जीवन जीने के लिए, That is discernment. और वो है समझना। So judging is another thing. और न्याय करना दूसरी बात है। And here it says when the Lord comes he will reveal all these hidden things. और वो कहता है कि जब प्रभु आएगा तो उस समय सारी छुपी हुई बातों को प्रकट करेगा। See, in our mind there's a thing called memory. हमारे दिमाग के अंदर याददाश्त करके एक बात है। That memory is like a videotape that is always recording everything in our life. और वो याददाश्त जो है वो एक वीडियो टेप की तरह है, हर चीज को जो है रिकॉर्ड कर लेता है। See, like this camera is now videotaping here. ये यहाँ पे कैमरा है जो कि उस हर चीज को अपने अंदर समा लेता It's है। taking a picture of everything. वो हमारे सबके पिक्चर ले लेता है, But it can't take a picture of what's in my thoughts. लेकिन वो हमारे जो दिमाग में चल रहा है उस चीज का पिक्चर नहीं ले सकता। This camera cannot tell you whether I am preaching for money or for honor or any such thing. और जो कैमरा है वो ये नहीं समझ सकता कि मैं पैसे के लिए प्रचार कर रहा हूँ या वैसे। But there's another camera inside my memory लेकिन मेरे याददाश्त के अंदर एक ऐसा कैमरा है which can also picture why I am preaching. Is it for honor or money or because I love the Lord? तो वो जो है उस चीज को जो है रिकॉर्ड कर लेता है कि क्या मैं पैसे के लिए प्रचार कर रहा हूँ या अपने आदर के लिए या फिर परमेश्वर के लिए। And is also it can picture all the thoughts that go on in my mind. और वो चीज को रिकॉर्ड कर लेता है जो मेरे दिमाग के अंदर चलता है। That is an amazing video camera, our memory. और वो याददाश्त जो है वो बहुत ही खूबसूरत एक वीडियो कैमरा है Because it can record everything. क्योंकि वो सब चीजों को जो है अपने अंदर रिकॉर्ड कर It can सकता है। record my thoughts, वो मेरे विचारों को रिकॉर्ड कर सकता my है, words, मेरे शब्दों को रिकॉर्ड my कर सकता है, actions, मेरे जो काम है उसको रिकॉर्ड कर my सकता है, actions in the presence of others, my actions when I'm away from others. और जब मैं यहाँ पे हूँ या मैं दूर हूँ उस समय जो काम करता हूँ उन सबको रिकॉर्ड कर And सकता है। also the motives of my heart. और मेरा मकसद क्या है उस चीज को भी वो रिकॉर्ड कर So लेता that's है। the second thing here. The Lord will bring to light the motives of people's hearts. इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो हृदय की भावनाएं उनको भी वो जो है रिकॉर्ड कर सकता है। See, sometimes a person can do a very good thing, but the motive can be evil. कई बार कई लोग अच्छे काम कर सकते हैं लेकिन वो हो सकता है कि उसके अपना हम हो सकता है।
For example, the Bible speaks about the bride and the harlot in Revelation. और प्रकाशित वाक्य में जो है दुल्हन के बारे में और वेश्या के बारे में लिखा है, The bride of Jesus Christ and a prostitute. वहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन के बारे में और वेश्या के बारे में लिखा है। Chapters Revelation 17 and 18 speaks about Babylon, the great prostitute. और 17 और 18 में जो है बेबीलोन के बारे में वो जो एक वेश्या के बारे में लिखा हुआ है, Spiritual prostitute, not physical prostitute. वो आत्मिक एक वेश्या है। And Revelation 19 and 21 speak about the spiritual bride of Jesus और Christ. 19 और 21 में प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन के बारे में लिखा हुआ है। And you know, both are called themselves Christians. और दोनों अपने आप को मसीह कहते हैं। Babylon is false Christianity and Jerusalem is true Christianity. बेबीलोन जो है वो झूठा मसीहा है और जो दुल्हन है वहाँ पे इज़राइल वो The सच्चा मसीह है। bride is the true Christian. और जो दुल्हन है वो असली मसीह है। Babylon, the harlot, is a false Christian. और जो बेबीलोन है वो झूठा एक दुल्हन है। One is a bride, one is a prostitute. एक जो है दुल्हन है और दूसरा वेश्या है। And one way to find out और एक रास्ता ढूंढने का is by money. पैसे के द्वारा। Do you serve God? Do you serve Jesus out of love? आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवा Or do you serve Jesus for reward? प्रेम के खातिर करते हैं या कुछ इनाम पाने के लिए? For example, एक उदाहरण के तौर पे a wife will give her body to her husband out of love. पत्नी जो है पति को अपने शरीर जो है प्रेम के कारण देती है। A prostitute will also give her body to a man for money. वहीं पे वेश्या भी अपने शरीर को जो है एक पुरुष को देते हैं सिर्फ धन के लिए, पैसे के लिए। Both are giving their body. दोनों अपने शरीर को दे One रहे is हैं, out of love, the other is for money. एक पैसे के लिए और दूसरा प्रेम के कारण। So you can find out in the church who are the bride and who is the harlot. तो आप कलीसिया में पता कर सकते हैं कि कौन है वो दुल्हन और कौन है वेश्या। Where a person serves Jesus out of love, अगर जो कोई व्यक्ति प्रेम के कारण अगर जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं that's a real wife. तो वो असली पत्नी है। But where a person serves Jesus for a salary or for money, और दूसरा एक व्यक्ति केवल तनख्वाह के लिए, पैसे के लिए अगर जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, who's the one who gives her body for money? तो वो उसके समान है जो पैसे के लिए देते हैं You know अपने the शरीर को। answer. तो आपको उसका जवाब पता है, Prostitute. वो वेश्या है। And there are so many people who serve Jesus today for money. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। That's how you see the harlot. और यही वेश्या है। You don't see it today. आप इसको अभी नहीं देख सकते। It says in the book of Malachi मलाकी की किताब में लिखा है that in the final day, और आखिर दिनों में verse 17, chapter 3, verse 17. 3 मलाकी की किताब 3 उसका 17। The Lord says, in that day they will be mine, in the day I prepare my own possession. यहाँ लिखा है कि जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे। Yes, he says, my bride I will gather, my own possession. मैं अपने भाग को या फिर मेरी दुल्हन को मैं इकट्ठा करूंगा। And that day, verse 18, you'll be able to distinguish between who is really righteous and who is wicked, and who really serves God and who did not serve God. यहाँ पे फिर 18 में लिखा है, तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता है, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। Today you don't see it आज आप नहीं पहचान सकते, because everybody appears very spiritual and talks about a burden to do this for the Lord and a burden to do that for the Lord. क्योंकि हर कोई आज जो है इस प्रकार से प्रकट करता है, दिखाता है कि परमेश्वर के लिए बहुत बोझ है, परमेश्वर के काम करने के लिए। The motive we cannot judge now. लेकिन उसका जो कारण, किस कारण से वो कर रहा है, हम नहीं जानते। We are not to judge also. और हम यहाँ पे न्याय करने के लिए भी But the नहीं। Bible says in that day the whole videotape will be played on the screen. You'll see the motive with which a person did everything. और उस दिन पूरा वीडियो दिखाया जाएगा कि किस कारण से आपने ये सब काम किए हैं। Why did you do it? आपने ये क्यों किया? Not what did you do, why did you do it? आपने क्यों किया? That will be the important question that वो day. प्रमुख प्रश्न रहेगा। And then you will distinguish who is really serving God and who is not serving Him. और उस दिन पता चल जाएगा कि कौन अर्थात यानी कि सच्चे मन से परमेश्वर की सेवा करता है और कौन नहीं करता। That is why it's best not to judge anybody now. इसीलिए सबसे बेहतर यह है कि अभी किसी का न्याय ना करें। I don't judge, but I discern.
मैं किसी का न्याय नहीं करता, लेकिन उनको समझने की कोशिश I करता हूँ, discern because I cannot associate with certain people because I sense there's not a right spirit there. क्योंकि मैं सबके साथ जुड़ नहीं सकता, सबके साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है उनके अंदर सही आत्मा नहीं I है। don't pass judgment on them लेकिन मैं उनका न्याय नहीं करता, because in the final day it will become evident. क्योंकि आखिर दिन में ये पूरा यथार्थ में So प्रकट होगा। if you want to be ready for that final day, अगर जो वो आखिरी दिन के लिए अगर जो आप तैयार होना चाहते हैं, make sure the things hidden in darkness are clean in your life. कि आपके जीवन में जो अंधकार में छुपे हुए बातें वो बिल्कुल साफ सुथरी हों। Make sure that every sin that you have done in secret is confessed and set right. और जो पाप अपने अंधकार में रहस्य में किए उन सब के जो है आपने माफ़ी मांगा हो, पश्चाताप किया हो। And like Zacchaeus, if you have taken money wrongfully from people, make sure you give it back. अगर जो जकरिया की तरह आपने किसी भी प्रकार से धोखे से किसी से ज़्यादा पैसा वसूल किया है तो उसको वापस लौटा दें। If you have not returned somebody's money, अगर जो आपने किसी और के पैसे नहीं लौटाए हैं तो the Lord comes. परमेश्वर जब आएगा, That man will say, Lord, you can't take him. He owes me some money. You wait till he pays it back, then you can take him. हाँ, तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि अरे प्रभु जी इसको अभी लेके मत जाओ क्योंकि इसने अभी मेरा पैसा नहीं दिया है। Will the Lord have to say that? Will somebody have to say that about you? Lord, you can't take that man because he owes me money. हाँ, तो क्या ऐसा बोलेंगे आपके बारे में कि अरे इसने मेरा पैसा नहीं चुकाया इसलिए प्रभु जी अभी इसको मत लेकर जाओ। As soon as possible, pay back all your debts. जितना जल्दी हो सके जो भी कर्ज आपने लिया है सब वापस लौटा दें। Especially if you have cheated somebody, return it. अगर जो आपने किसी को धोखा दिया है तो उसको वापस लौटा दें। Why did Zacchaeus say, I'll give back 4 times? ज़कैया ने क्यों बोला कि 4 समय ज़्यादा मैं Because 4 गुना ज़्यादा दूंगा? He made a quick calculation of 10% interest per year and decided I have to give back more than I took. तो उसने 10% ब्याज को जोड़कर जल्दी से उसने हिसाब किताब लगाकर बोला कि मैं 4 गुना ज़्यादा लौटाऊंगा। He said, I stole that from that man 15 years ago. I can't give the same money. I have to give him with interest. क्योंकि 50 साल पहले मैंने जो लिया अब वही रकम मैं वापस नहीं दे सकता, मुझे ब्याज भी चुकाना है। 15 years means I must give him 4 times. 15 साल मतलब कि मुझे 4 गुना ज़्यादा देना है। So we have to be righteous in all these hidden areas. और इन सब रहस्य की बातों में हमें बहुत ही धर्मी होना है। Very few preachers talk about all this. और बहुत कम प्रचारक ये सब प्रचार And करते those हैं। are the people who are not preparing you for the second coming of Christ. और वो इस प्रकार के प्रचारक हैं जो आपको तैयार नहीं कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के They are आगमन not के लिए, preparing you for the final examination. और वो आखिरी परीक्षा के लिए आपको तैयार नहीं कर रहे They हैं। are teaching you a lot of subjects which will not come in the final और examination. आपको जो है बहुत सारे विषय में तैयारी करा तो रहे हैं लेकिन वो सब विषय आखिरी परीक्षा में नहीं आएंगे।